सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ क्या लिखा था, या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो मैं पहले तुम्हें ये देखो, जैसे लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1z is equal to some d1. Okay, so this is first equations. You should understand that for to solve, if there are two variables there should be two equations, if there are three variables there will be three equations. यहाँ पे तीन वेरिएबल है x, y and z, so therefore I'm going to write three equations. Okay, first equation ये हो गई. Second equation is a2x plus b2x, sorry b2y plus c2z is equal to d2, and third equation is a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. ये हो गया ठीक. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, यस दिख रहा है ठीक. अब देखना ध्यान से, अगर ऐसे एक मैट्रिक्स मान लो, ऐसा मैट्रिक्स, इफ देयर इज अ मैट्रिक्स A is equal to which is having all these a1 a2 a3 b1 b2 b3 and c1 c2 c3, right? And the B matrix, sorry, and there is an X matrix, unknown matrix, which is, one second, this is 3 cross 3 x y z, this is 3 rows 3 cross 1, correct? And there is a B matrix which is again d1 d2 d3. See this, if you want to multiply two matrix, what is the condition? If you're doing A into X, this matrix into this matrix, इसका last वाला इसका first वाला should be same, right? And the answer is always 3 cross 1. Now if you see this carefully, if you multiply these two matrix, आंसर कितना आने वाला है? 3 cross 1 आने वाला है, 3 cross 1, right? 3 cross 1 आने वाला है, तो खाली 3 cross 1 मतलब there are, you know, 1 1 1 1, right? So पहला वाला क्या है? This is a11, इसका प्रोडक्ट कर रहा हूं बस, आई एम डूइंग दिस प्रोडक्ट. ओके, सो a11 मतलब क्या है? ये क्या है? a11, ये क्या है? a21, ये है a31. 11 मतलब पहले का रो और दूसरे का कॉलम मल्टीप्लाई करना है. पहले का रो दूसरे का, एक ही कॉलम है, दूसरे में मल्टीप्लाई करना है, तो क्या a1 इंटू एक्स दिख रहा है प्लस a2 इंटू वाई प्लस a3 इंटू जेड, यही लिखा है ना लेफ्ट साइड. एंड इसका आंसर कितना आने वाला? इक्वल टू d1. सो इक्वल टू d1, समझ में आया? So if you multiply ax, you are going to get a1x plus b1y plus c1z. Yes or no? Left side you are going to get a1x plus b1y plus c1z. If you multiply these two matrix, are you going to get this matrix? Yes or no? a1 into x plus b a2, sorry a2 into a2. क्या कर उल्टा कर दिया क्या? हाँ गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत. ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसका ट्रांसपोज है. सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज जैसे लिखा है वैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3. अब सही है? b1y and c1z, ठीक? अंडरस्टूड? एंड द सेकेंड एलिमेंट here will be a2 into x plus b2 into y plus c2 into z. Yes, right? Yes or no? And the third element will be a3x plus b3y plus c3z. Yes, and this is equal to d1 d2 d3. So my point is, my point of explaining all this was, writing the system of linear equations is same as writing the matrix equation ax is equal to b. This is important, that A is the matrix a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, x is the unknown matrix which is having x y z, and b is your, b कौन सा? राइट साइड है, d1 d2 d3. अंडरस्टूड? हाँ, if you solve these equations, what do you get? The values of, no, d1 d2 are constants. No, what is unknown? What are you solving for? X y z. So do you understand? These are my variables. Yes or no? सर क्या हुआ बोलिए? किसको? किसी को डाउट नहीं है, बस उसको, ये तो भी अग्रिम को डाउट है. तो नहीं है उसको, उसने कर भी लिया. हाँ, और बाकी लोग को, वो लोग कर. अच्छा 8, तो फिर आप उनको वो दे दीजिए. एक दूसरा एक दिया था मैंने, उसी में लिखा हुआ है स्टडी अड्डा हो गया. नहीं और तो कुछ है नहीं. तो 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं. ठीक है.
ये समझ में आया कि व्हेन यू सॉल्व दिस यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड समहाउ यहाँ पे ए मैट्रिक्स पता है, गिवन है क्वेश्चन में, बी भी गिवन है, एक्स इज अननोन मैट्रिक्स. इफ यू कैन आइसोलेट एक्स इन दिस साइड, इस साइड में एक्स आइसोलेट कर दो, तो राइट साइड जो आएगा वो आंसर होगा ना एक्स का. So understand that solving this set of equations for x, y, z is same as solving for the matrix x. Yes, understood? Write these two things and then write solving for x, y, z is same as solving for the unknown matrix x, where x is this matrix. Understood? Just a minute, I'll be back. Yes, that's yeah. So ax is equal to b. That whole, this whole box is written as ax is equal to b, right? And how do we solve this? Very simple. We solve this by saying, इधर से a कैसे जाएगा? What will you do? a को उधर लेके जाना है ना, बट a को तो ऐसे नंबर, इक्वेशन नंबर तो नहीं है कि लेके चले गए. यस, क्या करना पड़ेगा? a इनवर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड. और उसमें भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई. प्री मल्टीप्लाई का मतलब है, जैसे मैट्रिक्स में क्या होता है, एसोसिएटिव नहीं होता है. एसोसिएटिव का मतलब होता है आप ए बी, जैसे तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है, फिर मैट्रिक्स तीन, यू हैव थ्री मैट्रिक्स एंड यू आर मल्टीप्लाइंग देम and you're finding AB and then you're multiplying it with C. So you're doing this. Understood? It will not be equal to, in general, it will not be equal to A times of BC. So this is called associative property. And matrix multiplication is not associative. Therefore, तुम यहाँ पे A इनवर्स कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसके पहले या इसके बाद, वो मैटर करता है. उसके पहले करना पड़ेगा, यस और नो. इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लीकेशन. क्या बोलते हैं? प्री मल्टीप्लीकेशन. यहां करोगे तो क्या बोलेंगे? पोस्ट मल्टीप्लीकेशन. तो अगर लेफ्ट साइड में प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो तो राइट साइड में भी प्री मल्टीप्लाई करना है. तो इसको क्या लिखेंगे? नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा? ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. अंडरस्टूड? आई एम ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज ए इनवर्स इंटू बी. एंड देन व्हाट इज ए इनवर्स इंटू ए? I, right? I into x is equal to a inverse b. And what is I into x? Just x. Very good. I into x is just x. So x gives you a inverse into b. Keep in mind a inverse पहले, b बाद में. Understood? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्टा मत करना कि b into a inverse कर दिया. ये समझ में आ गया? Yes sir. चलिए क्वेश्चंस करते हैं, ये पक्का आएगा एग्जाम में. चलिए. So one second, by the way. चलो ये वाला करते हैं. यूज मैट्रिक्स मेथड, एग्जांपल 1 है. यूज मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशंस. यहाँ पे दो ही है. 2x plus 5y is equal to 7 and 6x plus 15y is equal to 13. ठीक, तो ये लिख लिया सबने? ये सबने लिख लिया है ना? ठीक. तो यहाँ पे व्हाट इज द फर्स्ट मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स क्या है बच्चों, बताओ? सॉरी, 2 5 6 एंड 15. वेरी गुड. और एक्स मैट्रिक्स कितना है? ये ऊपर नीचे होता है, ठीक है, एक्स वाई.
और b कितना है 713. वेरी गुड. एंड देन व्हाट विल राइट ax is equal to b and x is equal to a inverse b. x is equal to a inverse into b. अब a inverse निकालते हैं. ठीक है, साइड में साइड क्वेस्ट. a inverse is adjoint of a divide by det of a. ठीक. अब adjoint is transpose of cofactor matrix. पहले ट्रांसपोज लिखता हूँ. 2 का ट्रांसपोज 15, 5 का जगह 6, 6 की जगह 5, 15 की जगह 2, and then you have to take plus minus plus. So plus minus. ये हो गया मेरा. ये this is cofactor matrix. Last one is what? Sorry. तो ये हो गया ट्रांसपोज, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स. अब क्या लेना है इसका? गलत करा है क्या? प्लस माइनस प्लस या प्लस माइनस प्लस. माय गॉड, ये अब सही है. अब इसका क्या करना है? दिस इज कोफैक्टर मैट्रिक्स. अब क्या करना है इसका? ट्रांसपोज लेंगे तो 15, यहाँ -5, यहाँ -6, यहाँ +2. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा. ये मैट्रिक्स क्या है? ये मैट्रिक्स क्या है? एडजॉइंट है. यस और नो? हाँ. और डेटे कितना होगा? डेटे होगा 0 आ रहा है. नाउ वी आर इन प्रॉब्लम. हाँ, डेट ऑफ ए 0 आ रहा है ना. हाँ अच्छा, हाँ ये लिखो. ये पूरा जो मैंने डिस्कशन किया था उसमें अज्यूम्ड है कि डेटा इज नॉट इक्वल टू 0. अभी जो किया था ना डिस्कशन, यू हैव टू मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड्स, वो अज्यूम्ड डेटा इज नॉट 0. इफ डेटा इज इक्वल टू 0 then answer is not there. Understood? Then only you can do that inverse exists. Yes. Okay. ठीक है, तो इसका आंसर नहीं है. और इसका आंसर नहीं है, क्यों नहीं है देख लो. यहाँ पे थोड़ा 3 से मल्टीप्लाई करोगे. इधर देखो, ये बड़ा सिंपली भी दिख भी रहा है. इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 6x प्लस 15y इज इक्वल टू क्या आएगा? 21. तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि 6. यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बोल रहा है? 6x प्लस 15y इज इक्वल टू 13 भी बोल रहा है. और ये क्या बोल रहा है? 6x प्लस 15y इज इक्वल टू 21. ऐसा तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है ना. राइट, डिफरेंट सम फ्रॉम द सेम थिंग. राइट, अंडरस्टूड. सो दिस इज इनकंसिस्टेंट. समझ में आ गया? I am repeating because the data was equal to 0. This system is inconsistent. का solution नहीं है. Understood? ठीक है. Use matrix method to show the following is inconsistent. Inconsistent वाला नहीं करेंगे. उसका अगर लिखा है क्वेश्चन एग्जांपल 2 कर रहे हैं हमारे इसका. ठीक है, if it is written कि show use matrix method to show that the following system of equation is inconsistent, simply find data, show that it is equal to 0. तो दिखा देते हैं उसका डेटा, देख लो. नहीं एक्चुअली यू हैव टू, मतलब आएगा 3 मार्क का तो लिखना पड़ेगा ये सब ना, है ना. 2 मार्क का तो आएगा, लिखना पड़ेगा. डेटा 3 -1 and 2, 2 1 and 3 and 1 -2 and -1. अंडरस्टूड? यही है. ठीक. 3 टाइम्स ऑफ -1 प्लस 6 प्लस 5. यस. एंड -1 तो +1 टाइम्स ऑफ -2 -3 -5 plus 2 times of -4 -1 -5. so 15 -5 -10 0. ठीक है. ठीक है, लिखो जल्दी लिखो. जोर से बोलो. एग्जाम्पल 2 था. सॉरी, oh I did not write the x in example 2. I simply showed that data was 0. Okay.
No, I told him that you have to write, you have to show x, you have to show b, and then say data is 0. One is infinite solution. वो उस पे आएंगे बाद में, ठीक है. So इस पे देखो 2x plus 5y is equal to 1 and 3x plus 2y is equal to 7. ठीक, ये सॉल्वेबल है. इसका जो डेट है ना वो देखो 2 2 4 -15, 0 नहीं आ रहा ना. ठीक है, तो सबसे पहले a is 2532. ठीक है, हाँ ले लो फोन. b is 17. ठीक है, b is 17. नाउ a सबसे पहले एडजॉइंट a निकालते हैं. एडजॉइंट ऑफ a, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर. कोफैक्टर 2 का 2, 5 का 3, 3 का 5, 2 का 2. उसके बाद साइन प्लस माइनस माइनस प्लस. अब इसका कोफैक्टर ट्रांसपोज करना है, तो ये एडजॉइंट नहीं है. एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2 -3 -5 एंड +2. ठीक है, अपने आप करना, मेरा मत देखना फिर. बेटा वो लिख दिया था वहां पे, जाओ वहां देखो. उसी का तो करना था, 4 का ही तो करना था ऑब्जेक्टिव. नहीं, आपने बोला था 4A 4B 5B और ऑब्जेक्टिव. कौन सा ऑब्जेक्टिव 4 का ही था. 4A वाला सिर्फ लीनियर इक्वेशन. जी, एडजॉइंट ये आ रहा है. क्या हुआ? हाँ, अच्छा. व्हाट इज ए इनवर्स? ए इनवर्स इज एडजॉइंट बाय डेटे. डेटे है 4 -15 -11, राइट? सो इट इज 1 by -11 times 2 -5 -3 and +2. Yes or no? Therefore your A inverse is equal to 2 by -2 by 11 -2 by 11 plus 5 by 11 plus 3 by 11 -2 by 11. ये समझ में आ गया? Yes. And you have to multiply that to B. तो प्री मल्टीप्लाई मतलब B बाद में आएगा. तो A inverse B is how much? A inverse B, तो यहाँ पे अगर 1 और 7 लिख दूं और मल्टीप्लाई कर दूं तो आएगा -2 by 11 into 1 plus 5 by 11 into 7. यहाँ से आता है -2 by 11, यहाँ से आता है 35 by 11. 35 - 2 होता है 33. 33 by 11 कितना आता है? बस 3. यस है ना? अरे ये रो इंटू ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस रो इंटू दिस कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है. तो -2 by 11 into 1 plus 5 by 11 into 7. हाँ भाई प्लस हो गया ना ये. हाँ, एंड -2 plus 35 is 33. 33 by 11 is 3. दूसरा रो मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम से, दूसरा रो मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम से. सो 3 by 11 into 1 is 3 by 11. -2 by 11 into 7 is -14 by 11. 3 - 14 is how much? -11. -11 by 11 is -1. So your x value is how much? 3 and y value is -1. The matrix x, कैपिटल X क्या होता है? 3. ये मैट्रिक्स है. इंडिविजुअली x का वैल्यू कितना है? 3 और y का वैल्यू कितना? -1 डाल के देख लो. 6 - 5 is 1 and 3 3s are 9 -2 is 7. It is satisfying also. ठीक है. So then the matrix you get is 3 comma 3 minus 1. जोर से बोलो. 3 and 1. 3 and -1. 3 minus, So yes. you can also see this, Soham, that you know this is 2 cross 2 matrix and this 2 Yes, cross 1 1 matrix. cross So the 2 product cross will 1. be a 2 cross 1. 2 cross 1. Yes, which is 2 and just 2 elements in a row. Okay. ठीक है. Solve the next one. Hello.
Example 4. You have done? Yes or no? What is the answer? 3 minus 2 and 1. Okay, and one more thing, like normally the answer will be easy. So if you are getting complicated answers, check your calculations, okay? Yeah, x plus 2y minus 3z is equal to minus 4. 2x plus 3y minus 2z is equal to 2. And 3x minus 3y minus 4z is equal to 11. तो यहाँ पे a का वैल्यू है 1, 2 and minus 3, 2, 3 and minus 2, 3 minus 3 and minus 4, and x is x and b लिख देता हूँ minus 4, 2 क्या हुआ? Who said A2, 3? Good. So the A adjoint of A, first cofactor of A, minus 12 plus 6 minus 6 minus 8 minus 6 minus 14 minus 6 minus 9 minus 15. करूंगा साइन बाद में. minus 8 minus 9 minus 17 minus 4 plus 9 is plus 5, right? कितना आ रहा है? फोर 13 फिर अब साइन लेते हैं. ये तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस रहेगा तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. ठीक है, ये हो गया मेरा कोफैक्टर. अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो एट जाएगा एडजॉइंट. सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -6 plus 17 and plus 13. Okay, plus 14, 5 and minus 8 and minus 15 and 9 and minus 1. Okay, fine. ठीक है, अब ये हो गया. अब डेटे कितना आ रहा है? डेटे 23 है क्या? एक बता दो बेटा. Eleven is the answer. भाई ऐसे मत बोलो, दो लोग ने आंसर गलत नहीं निकाला हो सकता है. 67 है. Data is 67, so therefore A inverse is -6 by 67, 17 by 67, 13 by 67, 14 by 67, 5 by 67, -8 by 67, -15 by 67, 9 by 67, and -1 by 67. Okay, and A inverse you have to multiply it with B, right? So -4, 2 and 11. Plus 24 plus 34 plus 24 plus 34 is 58. 58 plus 13 into 11. 58 plus 143.
8 3 11 4 5 4 9 1 कैरी 1001 है क्या ये? एक मिनट, ये कैसे हो गया? 2 8 3 11 1 कैरी, यस। सब क्वेश्चन कर लिए ये 201 क्यों आ रहा है? 201 आ रहा है क्या? सारे क्वेश्चन 190 11 201 आ रहा है यार। कुछ गलत क्या हुआ? ये ऑब्जेक्टिव्स कर लिए वो नोटबुक दिखाओ, नोटबुक में मुझे 4 फाइव का मुझे क्वेश्चन नंबर 5 दिखाओ। 5 का क्वेश्चन नंबर 5। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, ठीक है। जाओ, भाग जाओ, जाओ जाओ। एक्सरसाइज 4A ऑब्जेक्टिव 4B जो है ना, 4B उसका क्वेश्चन नंबर 7 दिखाओ। 4B का 7 नोटबुक में दिखाओ, कहाँ लिखा है? सर ये दूसरी नोटबुक में है, ये मम्मी ने फोटो भेजी 4B का 7 ना, हाँ। दिखाओ। वो 4B में हाँ 4B में 7 सर ने बोला मत करो। हाँ बैठो, तुम जब जाओगे नहीं, तुम बैठो, जाओ जाओ, करो, खत्म करो। क्या हुआ? सर आप सर ने बोला मत करो। मैं आ रहा हूँ उधर ना फिर। ये सही है क्या? 60 मॉड डेट इज 67 67। वो तो सही लिखा ही हुआ है यहाँ पे, ये भी सही आ रहा है। हाँ ये भी सही है भाई। 201 बाई 67, अच्छा होगा 201 बाई 67 होगा, होगा 6 6 6 7 तरीके के, सही है, एकदम सही, 3 आएगा, वेरी गुड। यार ये सही बोल रही है, ये भी सही बोल रही है। 67 आउटसाइड ले सकते हैं ना, करेक्ट करेक्ट। एनीवे में बट मैं कर नहीं रहा हूँ 67, इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वो भी तो जान लो मेंटली तुम। हाँ बड़े बार बार लिखना पड़ रहा है 9 बार, तो वो गलत है। करेक्ट करेक्ट। सो यू कैन जस्ट राइट 1 बाई 67 आउटसाइड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके ठीक, और बस हो गया। फिर में 3 आ रहा है, ये कितना आ रहा है दूसरा वाला बता दो? -2। सेकंड थर्ड वाला 1। अच्छा ये देखो, इसका जो यूज है ना, ये बता देता हूँ कहां पर है। 2 इक्वेशन 2 अननोन, 2 इक्वेशन आती हैं, तुम सॉल्व कर लेते हो आसानी से, 10th में कर लेते थे। 3 आती हैं तो वो भी कर सकते हो ना, यहाँ से जैसे ऐसे मैनिपुलेट करके कर, बिना मैट्रिक्स से कर सकते हैं ना। 4 का भी कर सकते हैं, मेथड तो सेम ही है, पर लंबा होता जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा। तो थिंग इज, जैसे मान लो जो एक्चुअली जो रियल लाइफ मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं, सपोज तुमने उबर ऐप खोला, तुम्हें घर जाना है। हाउ विल उबर डिसाइड कि तुमको कितना फेयर दिखाए? हाउ विल उबर डिसाइड कि हाउ मच फेयर शुड इट शो यू? सो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स इट टेक्स इनटू अकाउंट्स। फर्स्ट, भाई सिटी कौन सा है, यस और नो? सिटी कौन सा है, उसके बाद टाइम क्या है ना, उसके बाद रेट ऑफ पेट्रोल क्या है, यस और नो? और भी हो सकता है, सर्च टाइमिंग है कि नहीं, है ना, तुम्हारा लोकेशन कहां से कहां तक है कि नहीं, उसके बाद तुम यूजर, हाँ ट्रैफिक है कि नहीं, है ना, यूजर है कि नहीं, यूजर कौन से हो तुम, क्या तुम अच्छे यूजर हो या तुम बैड यूजर हो, रेटिंग तुम्हारी कितनी है। तो कुल मिला के पैरामीटर्स कितने हो जाएंगे? बहुत सारे हो जाएंगे, 10 पैरामीटर्स हो जाएंगे। 10 पैरामीटर्स हो गए तो 10 इक्वेशंस ऐसी बनती हैं कि दिस इक्वेशंस बनती है, लीनियर इक्वेशंस, अज्यूमिंग कि लीनियर में काम हो रहा है, लीनियर इक्वेशंस बनती हैं, उनको सॉल्व करके फिर एक पैरामीटर, एक आता है मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स तुमको फेयर देता, बताता है ये फेयर है तुम्हारा, ठीक है। और भी बताता हूँ, जैसे यहाँ पे एक पीछे एक कोई कंपनी है, भूल गया मैं नाम उसका, मेरे दोस्त में काम करता था। दे गॉट टू डिसाइड कि दुकान पे कोको कोला जाता है ना, कोको कोला बिकता है ना दुकान पे, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल बिकती है, पेट बॉटल्स। तो वो डिसाइड, उनके ट्रक जाते हैं ना, कोको कोला के ट्रक्स विल डिलीवर द कोल्ड ड्रिंक्स टू द छोटा दुकान, राइट? लास्ट दुकान को वो डिलीवर करेगा ना। तो ये तो ऑल ओवर इंडिया काम हो रहा है। अब कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी दुकान में कितना कोल्ड ड्रिंक डाल जाना है? ना तो ज्यादा जाना चाहिए, खराब होगा, कम जाएगा, जितना डिमांड से कम जाएगा तो बिकेगा नहीं, तो आइडियल कितना जाना चाहिए, ये भी ऐसे डिसाइड होता है। और इनफैक्ट ऑल द जो नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स हैं, जहां पे भी नंबर्स, डिमांड, सप्लाई एंड ये भी है कि कितना कुछ भी डिसाइड करना है, कॉस्ट फंक्शन निकालना है, वो ऐसे ही निकालते हैं। हमने लीनियर प्रोग्रामिंग अभी नहीं किया ना, थोड़े दिनों बाद हम करेंगे एक चैप्टर लास्ट में लीनियर प्रोग्रामिंग करके। तो लीनियर प्रोग्राम LPP है ना, उसमें यू विल लर्न टू फॉर्म दीज इक्वेशंस, उसमें यू विल लर्न टू फॉर्म दीज इक्वेशंस इन रियल लाइफ सिचुएशंस। समझ में आया? जब वंस यू फॉर्म दीज इक्वेशंस, नाउ हाउ टू सॉल्व देम,
इफ यू हैव 100 इक्वेशंस 100 वेरिएबल्स, राइट, यू कांट टीच कंप्यूटर की बेटा पहले x यहां से निकालो फिर उसको इसमें डालो, ये आप कंप्यूटर को नहीं सिखा सकते। पर आप कंप्यूटर को एक मैट्रिक्स सॉल्व करना सिखा सकते हो, क्योंकि इसमें तो स्टेप्स है ना, बस दीज आर जस्ट कोडिंग स्टेप्स कि इसका ये क्या, इसका कोफैक्टर क्या है, ये समझ में आ रहा है। सो देयरफॉर कंप्यूटर कैन इजीली डील विद अ मैट्रिक्स, सो ऑल कंप्यूटर्स डील विद मैट्रिक्स ओनली। ये मैंने तुमको स्टार्ट में बताया था ना, है ना, ठीक है। तो ये इसका यूज है, ठीक है। इनफैक्ट कभी कभी 1000 इक्वेशन 1000 वेरिएबल्स भी होते हैं जिसको इक्वेशन कंप्यूटर 10 सेकंड्स में सॉल्व करके दे देता है, ठीक है। हाँ, उस कंपनी का नाम था जेडीए सॉफ्टवेयर। उसका बिल्डिंग बड़ा सा दिखता है बेलंडूर में, दिखता है क्या, देखा है तुमने जेडीए का? नहीं दिखता, ठीक है। यहां से भी दिखता है, छत से भी दिखता है, ठीक है, ओके। यू डू एग्जाम्पल 5, नहीं एग्जाम्पल 5 ठीक है। आई थिंक वी शुड कम टू रियल प्रॉब्लम्स, आई थिंक इसमें दे रखा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल 6 है, एग्जाम्पल 6 RS में इट सेज 2/x, इट इज सेम मेथड जब 1/x है टेक इट एज 1/x इज u, ओके। एंड देन देखो क्या लिखा है 2/x प्लस 3/y, देख लो वन लेक्चर में, वहां पे देख लो, वहां लिखा है 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल टू 4, बिकॉज 1/x you take as u, v and z, u v and w मान लो, तो u v 2u plus 3v plus 10w equal to 4. So rewrite these equations, solve this again the same way, find the u v w matrix. Are you getting this online people? Solve the u v w matrix, निकल आएगा सब मिल गया u v w, and then finally उल्टा करोगे तो x मिल गया, ठीक है, फाइन। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी होता है, एग्जाम्पल 7 यूज द प्रोडक्ट दिस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। देखते हैं वो कैसे, हाउ विल वी यूज दिस प्रोडक्ट टू सॉल्व दिस मैट्रिक्स। पहले वो मैट्रिक्स लिखते हैं, क्या है इक्वेशन मैट्रिक्स, क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन मैट्रिक्स, बोलो। 1 -1 and 2, 0 0 0 2n -3, 0 2n -3। यू कैन सी RS में ऑनलाइन पीपल खुद ही देख लो, एग्जाम्पल 7 की बात कर रहा हूं, ठीक है। एंड 3 - 2 and 4, ठीक है। 1 1 1 1 2 नो, ये, पर हमें तो इसका इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है ना, यस। हाँ देखते हैं, ये तो मुझे भी थोड़ा ट्रिकी कैसा है इसका, देखते हैं इनवर्स क्या, कुछ ऐसा है क्या, क्या हुआ, अमित सर से मांगो, वो यहाँ पे वो तो यार तो पहले बताओ, यहाँ पे इसी में कहीं है, ढूंढो। नहीं इसमें है, इसमें चेक करो, और रूम में भी चेक कर लो एक बार। हाँ चेक तुम्ही को ही करना पड़ेगा, तुम पहले बता दो तो मैं ढूंढ लेता। I understood, but I'm not getting how to do that. So basically, when you multiply those two matrices, we'll get the answer with some constant times y. ये आई आ रहा है क्या, ये आई आ रहा है क्या, मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो, मल्टीप्लिकेशन आई आ रहा है क्या, आ रहा है कि नहीं, हाईएस्ट टू भी क्या होता है, इसका मतलब वो क्या लिखा है, हाँ बे आई आ रहा है कि डेट आ रहा है, मुझे एक बात बताओ। अच्छा रुको रुको, देखो गैस करते हैं, इसका डेट कितना है वो निकालो पहले, इधर उसको छोड़ दो, इधर देखो इसका डेट ही निकालो। 8 - 6 2 ना, -1 is 1 into +9, ठीक है, सही है। और 2 टाइम्स -1 आ रहा है, 1 के -1 -1 आ रहा है डेट, अंदर देखो, अंदर भी देख लो, अबे क्या कर रहा है, अरे मैं सिर्फ डेटे पूछ रहा हूँ,
Why is उसको that? We don't need that. अरे मैं पूछ रहा हूँ मिला फिर कल ले लेना ठीक है समझ में आया मैं सिर्फ डेटे पूछ रहा हूँ ऐसे ही पूछ रहा हूँ डेटे मेरा मन है ऐसे इसलिए कितना है -1 ही है ना ये -1 है पक्का अब इसको देखते हैं उसको ए और बी को मल्टीप्लाई करके किया वहां पे जो लिखा है उसको मल्टीप्लाई करके आता है देखो -2 -9 +12 कितना है वो उसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है पहला 1 है यस देखते हैं दिस फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम ऑफ दैट 1 into 0 -1 into 2 is -2 +2 0 ये बच्चों करके देखो खुद ही हाँ फर्स्ट रो इनटू थर्ड कॉलम 1 into 1 +3 -4 so 0 दिख रहा है अब मैं पूरा एक और कोई कर देता हूं मान लो सेकंड रो और सेकंड कॉलम करता हूं तो 0 into 0 +2 into 2 -3 into 1 1 ये ना आई है अगर ये आई है तो मतलब वो क्या लिखा है वो क्या है सेकंड मैट्रिक्स पहले बताओ वे गधों a into what is I a into what is I inverse of a inverse of a into inverse of a is I तो वो a inverse लिखा हुआ है तो मैं और भी a inverse भी तुमको इजीली करके दे दिया निकालने की जरूरत नहीं है अंडरस्टूड समझ में आया नहीं आया आ गया देयरफॉर सीधे सीधे बट वही इनवर्स है ना बस ठीक है तो सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट विद बी आंसर आ जाएगा इफ यू मल्टीप्लाई द a इनवर्स विद b so your a inverse is -2 0 1 9 2 and -3 6 3 into 1 1 2 ठीक है -2 into 1 +0 into 1 +2 0 0 है ना पहला -2 into 1 +1 into 2 करेक्ट 9 into 1 +2 11 -9 -6 11 -6 is 5 6 7 -4 3 0 5 3 आंसर आ रहा है हाँ ठीक है 0 5 3 अंडरस्टूड चलो देख लेते हैं उसको देख लेते हैं कि वो कैसे किया है उसने भी वही किया है if you product you they have that is I so therefore a into this is I right and therefore a inverse is this understood ठीक okay example 8 का given a is equal to this example 8 a is equal to this and b is equal to this find ab and then solve the following system of equations ab निकालोगे देखते हैं ab सॉल्व पढ़ करके कितना आता है ab पढ़ करके कितना आया डेटे इनटू i आया इसका मतलब नहीं 8 i आया ना हाँ तो for the second matrix is the inverse लिखो ये लिखो लिखो ये क्वेश्चन लिख लो ये क्वेश्चन शुरू से a is this b is this we are writing example 8 okay शोना ठीक Putra, did you do exercise 7? Half of it. How busy are you in your life? Now, we have been doing it since a long time, no? 1 week has been given to complete that exercise, and that too only odd number I'm asking. नो नो you can't यहाँ पे इनवर्स नहीं है वो देखो मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पे वो है 8i इसीलिए बोल रहा हूँ ये वाला लिखने को
Hmm. E into B inverse should give us I, right? Hmm. Now, if we assume B is 8 times A inverse, B is देखो, so AB is 8I, right? so if we divide, that's what I'm saying, divide B by 8, so that way directly you get the A into 1 by 8 of B is I. This is crucial step because AB was 8I. In this, AB was 8I, right? AB is 8I. So if you add its matrix, if you take out 8 common, right? That is 8I. पहले वाले में like horizontal, the second one. So if it was not 8I, but it was just I, then B would be correct, correct. So B अगर 1/8 होता, मतलब B 1/8 होता, तो I आता, है ना? So what you're doing here is you are essentially doing 1/8 on both sides. You're doing a 1/8 on both sides. Just taking AB is equal to 8. देख AB equal to 8I है, 8 हाँ, पर किसी एक मैट्रिक्स में नीचे चला जाएगा 8. देख इसमें ना ये 8 है ना, जो ये 8 पहले राइट साइड में न्यूमरेटर में था. ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मैट्रिक्स में ऐसे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कुछ नहीं होता, मतलब इट इज नॉट अ डिवीजन. तुम ऐसे मैट्रिक्स b/2 नहीं कर सकते. उसका मतलब एक्चुअली क्या है, यू आर मल्टीप्लाइंग 1/2 टू एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. So therefore what you're doing, that's why I'm saying it, they are essentially doing 1/8 multiplication on both sides. So, but why are they doing it for B? Why are they doing it for B? You could have also done it for A, but you don't want to disturb A. Why not? So technically the B is becoming A. So A, the formula is X is equal to A inverse into B, right? क्योंकि देख But formula- A into something, if it gives you I, that means that something is A inverse, right? That's why we are not doing A/8. यहाँ पे लिखा है A into this box, this box has something is giving A inverse, yes, because of this property that A into something is giving you I. Understood? So therefore this is nothing but 1/8 of B is nothing but A inverse. Understood? So this is another, different ways of giving A inverse. We saw in example 7 they gave A inverse indirectly. Example 8 also they are giving A inverse indirectly. Okay, क्या हुआ साची? कोई बात नहीं, अभी लिख ले, समझ में आ जाएगा, थोड़ा आराम से सोचेगी तो. बहुत देर से पढ़ रही है ना, 5 बजे से. So after that, A inverse we have to multiply. Base B. Go up or down? Up. Three minus two minus one. Sorry. 3 minus 3 minus 2 minus 1. ठीक है.
3 minus 2 minus 1. Okay, we are going to do some word problems. So here we have to write equations. Example 9. The sum of क्या लिखा है पढ़ इसी पढ़ उसे क्वेश्चन को. The sum of three numbers is 6. 6 ठीक है. x plus y plus z is equal to 6 ठीक है. Twice the third number when added to the first number is 7. So Twice the x plus 3z. फिर से बोलो. X plus 3z. No, x plus y plus 3z. हाँ No, x plus 3z number 1. X plus Twice the third number when added to the first number. 3z plus x. ध्यान से पढ़ो. Y is the third number when added to the first number is 7. So Z is multiplied. No, z is x. So the first number twice the third number. So 2z plus x plus 7. Right, x plus 2z equal to 7. भाई अटैक क्यों कर रहा है उस पे? फिर मैं बोल रहा हूँ Z तो पूरा 3Z ट्वाइस द थर्ड नंबर. 3 नंबर है. पहला नंबर है x y और z ठीक है. 3 नंबर है अननोन x y z. पहला इक्वेशन बोलता है पहला स्टेटमेंट सम ऑफ 3 नंबर 6 so x plus y plus z is 6. दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ट्वाइस द थर्ड नंबर मतलब थर्ड नंबर का डबल मतलब 2z लेना है when added to the first number मतलब x के साथ. So x plus 2z gives you 7. और फिर क्या बोल रहा है on adding the sum of the second and third number. Second and third number का sum मतलब y plus z plus 3x is equal to 12. अगर ये करोगे तो 12 आ रहा है ठीक. Find the numbers using this method. Again, babies make mistake. 1 1 1 1 0 2 3 1 1. X is odd either 1 or 3. X is 1 or 3. 3 3s are 9. 3 3s are 9. ये है क्या? हाँ यही है. नहीं 3 1 2. हाँ 3 1 2 यही है ना. X is 3, y is 1, z is 2. 3 is 9. हाँ करेक्ट है करेक्ट है. यहां से देख यहां से पता चल रहा है ना कि x ऑड है. 7 minus 2z 2 times z इवन होगा ना तो z x ऑड है और x क्या फिर में 1 और 3 है ना. 5 तो नहीं हो सकता फिर बचेगा ही नहीं इनके लिए कुछ है ना. तो 1 और 3 है. 1 भी छोटा ही लग रहा है तो मैंने पहले 3 डाला उसके बाद यहाँ पे 3 डाला तो ये हो गया z कितना आ गया 2 आ गया ना. 3 2 और फिर 1 बचा फिर ये सेटिस्फाई भी कर रहा था. चलो सॉल्व भी करते हैं इसको ठीक है. देखो 1 1 और 1 यस और नो. और दूसरा क्या है 1 0 और 2 और यहाँ पे क्या है 3 1 और 1 यस और नो. सही है. चलिए 1 टाइम्स 0 minus 3. 1 minus 6 1 0 1 minus 3 minus 2 1 minus 3 minus 2 क्या सही है. 2 1 minus 1 and then minus plus minus plus minus plus minus plus minus plus उसके बाद इसका कोफैक्टर -2 0 2 5 -2 -1 and 1 2. ये हो गया तुम्हारा एडजॉइंट. हाँ ये एडजॉइंट हो गया. ये एडजॉइंट आ गया ठीक है. एडजॉइंट आ गया. अब डेट कितना है 1 into 0 minus 2 so -2
1 into 1 minus 3, 1 minus 3 is minus 2, और ये प्लस 2 के साथ है तो ये 0 हो जाएगा, सही है ना ये? हाँ, और ये 1 है, 1 1, ये तो 1 आ रहा है डेट, इसका डेट 1 है क्या? चेक करो, तुम खुद चेक करो, डेट डेट So 1 into 2 minus 1 into 1 minus 6 minus 5. 1 minus 6. राम 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 into 0 minus 2 minus 2, 1 into 1 minus 6, अच्छा 6 है ये, तो इधर भी फिर गलत किया होगा, 1 minus 6 1 minus 6. Minus 5. Minus 5. Minus 5. ये ऊपर वाला रो है उसको नीचे वाला कॉलम Minus क्या? इसका रो और उसका कॉलम मल्टीप्लाई मतलब किसके लिए बोल रहे हो? फॉर फाइंडिंग डेटा डेटे के लिए क्या करते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, वो A11 C11, हाँ बे, ये भी तो सही है, देखो देखो, की साइड पे भी कंसीडर करते हैं ना. नहीं नहीं नहीं, वो तो सही बोल रहा है, तुम सही बोल रही हो, तो डेटे ऐसे भी निकाल सकते हो, जो निकालते हैं जैसे वही निकाल सकते हैं। और एक और तरीका इसने बताया, ये जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है, ये क्या होता है? ये कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है ना, तो तुम इसका रो उठा के इसके इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो वो डेटे आएगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है C11 C12 C, यही होता है ना। और व्हाट इज डेट? डेट इज A11 C11 plus any row into its corresponding cofactors. If you do that, you can get det. Yes or no? तो ये देखो, इसको इससे भी कर सकते हैं, ये देखो, ए हर्षल, इससे भी कर सकते हैं, दिस इंटू दिस, है ना, 1 into 0 0 into 2 2 into 2 4, वेरी गुड, ठीक है, इससे भी कर सकते हैं, ये इंटू ये, है ना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा, ये ट्रिक मैं भूल गया था, थैंक यू याद दिलाने के लिए। -2 into 6 is -12, plus 0 into 7 is 7, plus 2 into 12 is 24, so 0 into 7 is 0, so -2 into 6 is 12, plus so plus 12 आएगा। हाँ, गलत क्यों आ रहा है? अच्छा अच्छा, डेट तो बाई 4 भी है ना, बाई 4 भी, तो 1/4 भी है ना बाहर, तो 3 आ रहा है ना, ठीक है, वो आ जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन 3 1 3 और 1 और 2, ठीक है, ओके। एंड ऑनलाइन हैव यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये कर रहे हैं, इक्वेशंस लिखेंगे फिर जाएंगे। A school wants to award its students for the value of H, R and hard work, honesty, regularity and hard work. With a cash award 3 times the award money for hard work. ये इसीलिए ना, हार्ड वर्क सबसे पहले है, ऑनेस्टी, फिर रेगुलरिटी और फिर हार्ड वर्क। 3 times the award money for, इसको मैं बोल रहा हूँ X, Y and Z, ठीक है। 3 times the award money for hard work, 3Z, added to that given for honesty plus X amounts to 11,000। पहले तो 11,000 ना, अरे रुको ना 1 मिनट, ये क्या सही है? सही है, ये सही लिखा है। The award money given for honesty and hard work together, honesty मतलब X plus Z together is 2 times the Y, yes or no? So if I want to write it nicely, X minus 2Y plus Z is equal to 0, and I should write this also as X plus 3Z plus 0Y plus 3Z is equal to 0, ठीक है। और वो क्या है? द अमाउंट, हाँ, और दूसरा X plus Y plus Z is 6,000, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या है? 1 1 1 1 1 1 1 1 minus 2 1 and 1 0 and 3,
तुमने ध्यान रखा, मैंने ऑर्डर में जरूरी नहीं कि ये पहले की ये बाद में, ऐसे कोई मतलब नहीं, ठीक। बस ये पहले है 111, तो यहाँ पे 6000 बी में पहले आएगा, ठीक है, और बी इज 6000। फिर बाद में ये लिखी, कौन सी लिखी, ये गलत लिख दी, -2 होगा ना, तो यहाँ पे 0 आएगा, और ये 103 है तो यहाँ पे 11000 आएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ए। यस, कितना में डेट कितना आ रहा है? नहीं सॉल्व नहीं कर, हो गया, ठीक है। देखता हूँ कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है तो बताता हूँ, अदरवाइज नो, देयर इज नो अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। 8A ही है बस, ठीक है, 8A ही है बस, इसके बाद देयर इज नो अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड, 8A है जो करना है आपको, और ये पूरा करना है, नो ऑड नो इवन, सब कुछ करना है, क्योंकि इससे तो आएगा, यही आएगा एक पूरा, ठीक है। अच्छा, नाउ we'll meet on संडे विद अ टेस्ट। यू नो, एक फिजिक्स का टेस्ट है विच इज 35 मार्क्स का फ्रॉम आई थिंक KCET एंड 35 फ्रॉम chapter is mentioned in the message, Current electricity. electrostatics and Current chemistry. electricity. Current electricity, Electricity. current electricity, current chapter 3, it is current electricity, okay. And there is a test of haloalkanes and electrochemistry, Yeah. both 35 marks, completely from NCERT, ठीक है। So read your NCERT carefully, thoroughly in chemistry, and physics में 35 from NCERT and 35 from KCET book, ठीक है, ठीक है। We'll see you on Sunday. Apart from that, these are 1 hour tests, right? 1 hour tests, 2 hour. 1 hour 2 hours ऐसे कुछ होगा, 2 hours, I think 1.5, 35 मार्क्स का तुमको कौन 2 घंटा देगा लिखने को? No. केमिस्ट्री का भी अगर 70 मार्क्स है तो तुमको 2 घंटा थोड़ा मिलेगा लिखने को, सब 1 लाइनर है ना। 35 मार्क्स, हाँ 1 लाइनर है सब, मैक्सिमम 1 hour 90 minutes मिलेगा, ठीक है।